लर्निंग इंग्लिश थ्रू श्री रामचरितमानस के इस तीसरे भाग में दादा और उनके पोते के साथ तीनों पीढ़ियों का हार्दिक स्वागत है। आइए जुड़िए और आनंद लीजिए। जय श्री राम। जय श्री गणेश, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। Welcome to the third session of learning English through Ramcharitmanas. In the previous session, we were discussing about the types of sentences and the composition of the various kinds of sentences. We had discussed the composition of the affirmative and the negative sentence. The third type of sentence is the interrogative sentence. Is Sita reading a book? Question mark. क्या सीता किताब पढ़ रही है? ये एक प्रश्नवाचक वाक्य है और इसकी कंपोजिशन में you will notice that we have taken out the helping verb and the sentence begins with helping verb, subject, main verb, article, object and punctuation. Note, here in an interrogative sentence, the composition begins with helping verb. Is Sita reading a book? And while speaking and pronouncing interrogative sentence, our tone should also be like that of a question. Is Sita reading a book? क्या सीता किताब पढ़ रही है? हमारी भाषा में भी वह प्रश्न दिखना चाहिए। राम किताब पढ़ रहा है एक सीधा वाक्य है। क्या सीता किताब पढ़ रही है? इसमें एक प्रश्न हमें दिखना चाहिए बोलने में, और लिखने में चूँकि वो क्वेश्चन मार्क अंत में आएगा, वो इसका अर्थ है कि ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इज सीता रीडिंग ए बुक? द नेक्स्ट टाइप इज इंटरोगेटिव नेगेटिव. It is a combination of a question sentence and a negative sentence. Is Sugriv not reading a book? The composition is helping verb, subject, not, main verb, article, object and punctuation. Is Sugriv not reading a book? Again repeat. The sentence will start with helping verb, subject, not, main verb, article and object, finishing with a question mark. My dear friends, let me emphasize once again that these four types of sentences are very, very basic for learning English language. And in composition, you should also understand the meaning of these parts or the components of a sentence, which are called parts of speech. The subject, object, verb, article
and punctuation. Subject is the doer of the activity, कर्ता, काम को करने वाला. वर्ब इज द एक्टिविटी, वह काम जो किया जा रहा है. ऑब्जेक्ट, जिसके साथ काम किया जा रहा है या जिसके ऊपर काम किया जा रहा है. आर्टिकल, वो ऑब्जेक्ट के साथ जुड़ा हुआ एक पार्ट ऑफ स्पीच है. और पंक्चुएशन, जैसा कि हम समझ चुके हैं, दैट आइदर इट इज फुल स्टॉप, कॉमा, सेमी कॉलन, पूर्ण विराम, अर्धविराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, अनुस्वार इत्यादि. Now, after learning these 4 kinds of sentence, I think you should now practice in terms of identifying these 4 types of sentence. You take any textbook of English or any newspaper, any magazine in English, devote 5 minutes, read a paragraph, and bring out sentence. Write down the sentences which have been given in a paragraph on one side. Make a column. And before that column you write whether the sentence is affirmative, negative, interrogative, or interrogative negative. I am repeating, there are few more types of sentences, but for present, these are the most basic types. And you should learn these 4 basic types, first of all. And in second practice, you try to identify the subject, the object, and the verb, and article, and the punctuation. That is all components of a sentence. Whatever sentence you have picked up, जिस किसी भी वाक्य का आपने चुनाव किया है, उसको सबसे पहले ये पहचानें कि वो सकारात्मक है, नकारात्मक है, प्रश्नवाचक है या प्रश्नवाचक नकारात्मक है. और बाद में ये पहचानने की कोशिश करें कि उस वाक्य में सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, आर्टिकल क्या है और पंक्चुएशन क्या है. And remember that there are 2 kinds of verb, the helping verb and main verb. So while identifying the verb, you should pinpoint which is helping verb and which is main verb. Dear friends, I am concluding my today's session with this reminder that now your job at home begins. You should practice to learn how many types of sentences are there, and you should practice to learn the various components of sentence. I conclude this third session in which we have learned about the types of sentences. I would like to share a few points.
In this venture or endeavor, there are two aspects. One is learning English, another is Sri Ramcharitmanas. Let us ask ourselves, which is important? My answer is both are important. Learning English will provide us a survival skill, and Sri Ramcharitmanas would provide us both these skills, the survival skill and the existential skill. As human beings, we have these two aspects. One is the nourishment of body, the nourishment of survival. The another is the nourishment of soul, that we call survival and existence. And therefore, dear friends, realize the importance of this venture and try to do and practice whatever is suggested or advised. The second thing, that learning should be a play. It should not be a burden. It should lead to a joy, happiness. Whenever learning becomes a burden or a boring task, the learning stops. And that is why our modern education system is somehow not being very successful. We are not being able to make our entire education of science and humanity a playful game, a joyous venture, a activity leading to happiness. And thirdly and lastly, that have trust and faith that in our Indian culture, that in our बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम्। भव को उत्पन्न करने वाली भवानी को नमन करने से ये जो यात्रा प्रारंभ हो रही है, ये बड़ी अद्भुत है। कल यात्रा का समापन हुआ था वंदे वाणी विनायको, शारदा की वंदना की, उसके बाद गणपति की वंदना की। जैसे ही शारदा और गणपति हृदय में बैठे, श्रद्धा की उत्पत्ति हुई, क्योंकि भवानी श्रद्धा का प्रतीक है और भगवान शंकर अगाध विश्वास का प्रतीक है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, एक श्रद्धा का है, दूसरा विश्वास का है। जहां दोनों होंगे वहीं सफलता मिलेगी। ये मैनेजमेंट का सर्वोत्तम सिद्धांत बाबा ने प्रतिपादित दूसरे श्लोक में कर दिया और कहने लगे कि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम। अरे उन भवानी शंकर की मैं वंदना करता हूँ। श्रद्धा और विश्वास के दोनों रूप है, जिनका अनुग्रह यदि नहीं हो तो सिद्ध पुरुष भी कितना भी जप कर ले, कितना भी तप कर ले, पर जब तक हृदय में शिव तत्व नहीं होगा, जब तक श्रद्धा नहीं होगी, जब तक भगवती भवानी नहीं होगी, तब तक वो अपने हृदय में विराजित नारायण के दर्शन नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। मानो वो पहले ही कह रहे कि सुनो, श्रद्धा धारण करो। जो चरण भागवत की महात्म्य बताते हुए पद्म पुराण ने दिए थे, अदृढ़म चहतम ज्ञानम प्रमादेन हतम श्रुतम संदिग्धो हि हतो मंत्रो व्यग्रचित्तो हतो जप है
बिना दृढ़ आधार भूमि के ज्ञान नष्ट हो जाता है। इसलिए जब कंधे पर मुर्दा होता है तभी हमारे पूर्वज बोलते थे श्री राम नाम सत्य है। प्रमाद से सुना गया तो सुना हुआ नष्ट हो जाता है। इसीलिए कभी भी ब्याह के अंदर राम नाम सत्य है नहीं सुनाया जाता। संदिग्ध भाव हो, विश्वास नहीं हो, श्रद्धा नहीं हो तो कितना भी जप करो मंत्र नष्ट हो जाता है। संदिग्धो यतो मंत्रो। और व्यग्र चित्त से यदि जपा जाए, जल्दी जल्दी जपा जाए, मन एकाग्र नहीं हो तो किया हुआ जप नष्ट हो जाता है। इसलिए 4 चरण में पूजा की पद्धति बताई गई है। आनंद से जपो, अजामिल की तरह एक बार जपो पर मन से जपो। आनंद से जपो, भगवती शारदा का ध्यान करो, गणपति का ध्यान करो। उसके बाद श्रद्धा और विश्वास के प्रतीक भगवान भोले बाबा पर दूध चढ़ाओ, दही चढ़ाओ और उनको रामचरितमानस सुनाओ। कितनी सुंदर धारणा के साथ वो ले जाते हैं। अहम श्रद्धा विश्वास रूपिणो भवानी शंकरो वंदे याभ्याम विना सिद्धा स्वांतस्तमीश्वरम न पश्यन्ति। धारण क्या करो? अहम, मैं जो बोलने वाला हूँ वो क्या करने जा रहा हूँ? अहम श्रद्धा विश्वास रूपिणो, मैं श्रद्धा और विश्वास के प्रतीक भगवान भवानी शंकर की वंदना करता हूँ। भवानी शंकरो वंदे याभ्याम बिना, जिनकी कृपा के बिना सिद्ध जन भी स्वांतस्तमीश्वरम न पश्यन्ति, हृदय में बैठे हुए नारायण के दर्शन भी नहीं कर सकते। इसलिए सबसे पहले मैं उनकी वंदना करता हूँ, क्योंकि श्रद्धा ही तो साधन है। तभी तो भगवान कृष्ण गीता में कह देते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जिसके मन में श्रद्धा है ना उसे ज्ञान प्रकट हो जाता है। वरना कितना भी पढ़ो पोथी, पढ़ जग मुआ पंडित भयान कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। सबसे बड़ी अच्छी नीति यही है। उस प्रेम को जिसमें पूरे 3 अक्षर भी नहीं है, 2 भी नहीं है, बीच में कहीं अटका हुआ है 2.5 अक्षर है, उस 2.5 अक्षर को जो पढ़ जाएगा वही सफल हो जाएगा। इस टूटे फूटे अक्षर के साथ जुड़े हुए 2 अक्षर को जो पढ़ जाएगा वो 2.5 लाख की जागीर पा जाएगा। इसलिए श्रद्धा हो और विश्वास हो तो सब कुछ मिल जाता है। ये जो माँ है ना ये श्रद्धा की प्रतीक है। और श्रद्धा किसकी है? धर्म की पुत्री का नाम श्रद्धा है। तभी तो ग्रंथों में कहा गया है श्रद्धा धर्मसुता देवी पावनी विश्वभाविनी। विश्व को भरण पोषण करने वाली, भव को संभालने वाली ये माँ जो है धर्म की बेटी है। जहाँ धर्म है वहाँ श्रद्धा है, इसलिए इसको धारण करो। और उसके बाद विश्वास के प्रतीक शिव तत्व को धारण करो, जिनका सकार बोलते ही जीभ उछलकर तालू से टकराती है। हिंदी की ये भी एक योग्यता है, क्योंकि जब तक विश्वास नहीं होगा, बिनु विश्वास भगति नहीं तेहि बिनु द्रवहि न राम। अगर बिना विश्वास है तो भक्ति नहीं हो सकती, और भक्ति नहीं है तो भगवान राम द्रवित नहीं हो सकते। इसलिए दोनों की आवश्यकता है। श्रद्धा भी होनी चाहिए और विश्वास भी होना चाहिए। तभी तो माँ की वंदना की गई है। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण संस्थिता। हे माँ, सर्वभूत के हृदय में श्रद्धा के रूप में तू जो विराजमान है, हम तेरी वंदना करते हैं भगवती दुर्गा। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मार्कंडेय पुराण का ये नमस्कार 3 बार नमस्कार कितना अद्भुत है। माँ के उस श्रद्धा स्वरूप को नमन है जिसको भगवती पार्वती के रूप में इन्होंने नमन किया है। पर्वत की पुत्री, भव की अधिष्ठात्री देवी भवानी को नमन किया। और भवानी को नमन करते किसको नमन करते? भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। अगाध विश्वास होना चाहिए। बाबा में कितना अगाध विश्वास है। जब समुद्र मंथन हो रहा था, स्वयं भगवान कूर्म अवतार बनकर नीचे लगे हुए थे और सारे के सारे देवता वासुकी नाग को मथानी बनाकर मंदराचल पर्वत को बीच में लगाकर मथ रहे थे समुद्र को। पहला फल प्रकट हुआ, कालकूट विष प्रकट हुआ। न देवता खा पाए, न असुर खा पाए, कोई नहीं खा पाए। पहले किसी को शिव तत्व याद नहीं था।
किसी के मन में वो विश्वास धारित नहीं था। सारे भागकर भवानी के पास गए। ओ माँ भवानी, ये जो तेरा पति है इसे भेज, पहला फल तो इसी को खाना है, हम नहीं खा पाएंगे। कब गए? जब जहर निकला। अमृत निकलता तो कोई नहीं जाते, लेकिन जब जहर निकला तो सारे शंकर के पास गए। क्या भवानीपति नहीं जानते थे क्या पिलाने आए? लेकिन उनमें अगाध भरोसा था भगवान राम पर। उनको पता था कि कोई जहर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, चाहे कोई बनवीर मीरा को कितना भी जहर पिलाए, चाहे पाश्चात्य जगत हमें कितना भी डीडीटी खिलाए, कितना भी क्लोरोपाइरिफास खिलाए, कितनी भी एल्ड्रिन पिलाए रोटी में डालकर, हम जिंदा हैं क्योंकि नारायण तत्व का विश्वास हमारे साथ है। आज उनके मन में विश्वास था, इसलिए वहां से उठे। स्वयं जगन माता ने अनुमोदित किया, भवानी ने अनुमोदित किया कि देव कार्य के लिए यदि विष भी पीना पड़े तो आप जाइए। और जाकर उन्होंने वो पूरा विष अपनी हथेली पर लिया और हथेली पर लेकर के केवल इतना ही बोले कि मैं केवल भगवान राम को जानता हूं, मैं नहीं जानता ये जहर है, मैं नहीं जानता ये क्या है, ये जलाने वाला है ये भी नहीं जानता, मारने वाला है ये भी नहीं जानता, केवल भगवान राम मेरे साथ है। इतना अगाध विश्वास हो तो बोले शंकर जगत पूज्य बन जाते। श्री राम नामाखिल मंत्रम मम जीवनम चरदे प्रविष्टम हालाहलम वा प्रलयानलम वा विशताम वा मृत्योर्मुखम कुतो भवे। श्री राम नाम रूपी अखिल मंत्र मेरे गले में है। मैं नहीं जानता ये कालकूट विषय, मैं नहीं जानता ये आग है, मैं नहीं जानता ये मौत है, बस जो कुछ भी है राजा रामचंद्र और पी गए तो पता है परिणाम क्या हुआ। मौत नहीं हुई, पूजा हो गई। हरि कीन दया तब करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जरत सकल सुर वृंद विषम गरल जेहि पान किए। कौन होगा उनसे पवित्र? सारे देवता जले बैठे थे और जो भगवान राम का नाम लेकर जहर पी गए, कोई चिंता नहीं थी। ऐसे भवानी शंकर की जो वंदना करेगा तभी हृदय में विराजित नारायण उसके हृदय से प्रकट होकर उसे दर्शन देंगे। इतना अद्भुत ज्ञान देते हैं बाबा तुलसीदास कि जाओ काशी विश्वनाथ के दरबार में जाओ, उस भव की अधिष्ठात्री भवानी की धारणा करो, उन शंकर की धारणा करो, तभी जाकर के अपने हृदय में विराजमान उस राम तत्व को प्रकट कर पाओगे। राम तत्व के प्रकट करने की इस अद्भुत विधा का नाम ही श्रद्धा विश्वास रूपिणो है। इसका हम आनंद लें और फिर इस यात्रा को आगे बढ़ाएं मानस के माध्यम से, फिर अंग्रेजी भाषा सीखे, अंग्रेजी भाषा के माध्यम से फिर मानस सीखे। बोले राजा रामचंद्र की जय, अवधपति रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय।